Selection of representative for collaboration. A community representative must be a member of the community and can be a parent of a child in the school. Community representatives are appointed by school council members. A community representative brings an additional perspective to council decision. कौन हो सकता है कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव? एक पेरेंट जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ता हो। और कौन अपॉइंट करता है उसे? स्कूल के काउंसिल। Expresses the viewpoint of the community they represent, communicate the activities of this council to stakeholders, works collectively towards the common goal of improving teaching, learning, and student achievement, participate in the school development process with other participants, and participate in and is prepared for council meetings and discussions. Collaboration with local bodies. An effective family community school collaboration must come together at the local level. Thus, a school and its surrounding community are a reasonable focal point around which to build an infrastructure. Primary emphasis on this level meshes nicely with contemporary restructuring views that stress increased school-based and neighborhood control. From a local perspective, first the focus is on mechanisms at the school neighborhood level based on analysis of what is needed to facilitate and enhance efforts at a locality. Mechanisms are conceived that enable several school neighborhood collaborative to work together for increased efficiency, effectiveness, and economies of scale. For example, connecting a complex or family of schools such as high school and its feeder schools. Parent teacher meeting. Point 1. Parent teacher meetings are a regular feature of school life. Often they add to stress loads. Not only do they usually occur before or after a busy day of teaching, many teachers feel uncomfortable dealing with parents. Communication with parents and guardians of students require considerable planning and effort on the teacher's part. One method will not work with all parents. Communication with families can be face-to-face, written or electronic. An opportunity for face-to-face verbal communication occurs at parent-teacher conferences. If run effectively, conferences can offer great opportunities to establish good relationships, but if handled poorly, they can have negative consequences. Mechanism to promote communication. Teachers attempt to establish partnership with parents to support students. Learning strong communication is fundamental to this partnership and to building a sense of community between home and school. In these changing times, teachers must continue to develop and expand their skills in order to maximize effective communication with parents. Avenues of communications: one-way communication and two-way communication. Barriers to communication. Cultural differences on a parental level, economic and time constraints, lack of technology. Overcoming linguistic barriers. Speak slowly and clearly. Ask for clarification. Avoid idioms.
अवॉइड स्लैंग लैंग्वेज, बी स्पेसिफिक, बी पेशेंट। ये तमाम वो पॉइंट है जिनको आप यूज करके अपने लैंग्विस्टिक बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो 9 कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमारा कोर्स कंप्लीट। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्मार्ट विजन आज यूनिट 9 हमारा टॉपिक था जिसमें हम कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी स्टडी किया, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी देखी, 90s में कम्युनिटीज कैसे थी, फिर उसको किस तरह डेवलप किया उस डेफिनेशन और किस तरह उस पर वर्क होता रहा। फिर हमने फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव्स फॉर कम्युनिटी स्कूल कोलैबोरेशन स्टडी की डिटेल में, फिर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर कोलैबोरेशन स्टडी की, फिर कोलैबोरेशन विद लोकल बॉडीज हमने स्टडी किया, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स स्टडी किया, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग स्टडी की, फिर एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर पेरेंट्स टीचर मीटिंग, फिर मैकेनिज्म टू प्रमोट कम्युनिकेशन ओवरकमिंग लैंग्विस्टिक बैरियर्स। इन सब पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हमने डिटेल्स में अपनी पीपीटी स्लाइड स्टडी की, जिसमें इंट्रोडक्शन देखा स्कूल और कम्युनिटी के बारे में, जिसमें short school community collaboration occurs when groups or agencies come together to establish an educative community। फिर हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी स्टडीज की, some focused on community as a geographical area, some on a group of people living in a particular place, or other which looked to community as an area of common life। फिर approaches the theory of community, जिसमें जो डिफरेंट वेज हैं 3, जिसमें प्लेस, इंटरेस्ट और कॉम्युनियन डिटेल में स्टडी किया। फिर कम्युनिटी एज नेटवर्क एंड लोकल सोशल सिस्टम, जैसे आपका जो बियॉन्ड द पेरीमीटर लाइफ वर्क, रिलीजियस प्लेसेस, नेबरहुड, सिविक लाइफ, ग्रुप ऑफ अदर्स, 5 टाइप्स ऑफ सपोर्ट नेटवर्क हमने स्टडी की। इसके बाद लोकल फैमिली डिपेंडेंट सपोर्ट नेटवर्क स्टडी किया, द लोकल इंटीग्रेटेड सपोर्ट नेटवर्क स्टडी किया, द लोकल सेल्फ कॉन्ट्रेक्ट सपोर्ट नेटवर्क स्टडी किया, द वाइडर कम्युनिटी फोकस सपोर्ट नेटवर्क स्टडी किया, द प्राइवेट रिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट नेटवर्क स्टडी किया। फिर कम्युनिटी नॉर्म्स एंड हैबिट्स, जिनमें 3 लिंक्ड क्वालिटीज हैं, अपेयर विद सम रेगुलरिटीज इन डिस्कशन ऑफ कॉमन लाइफ, जैसे टॉलरेंस, रेसिप्रोसिटी एंड ट्रस्ट। फिर सोशल कैपिटल, जिसमें हमने देखा द सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड क्वालिटी ऑफ सोशल नेटवर्क वेरीज ग्रेटली बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज दैट पीपल नेम, लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, पब्लिक स्पेसेस, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। देन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर कम्युनिटी स्कूल कोलैबोरेशन डिटेल में स्टडी किया। फिर इंप्रूविंग स्कूल कम्युनिटी कोलैबोरेशन बाय फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव डिटेल में हमने स्टडी किए। कौन से इनकरेज कम्युनिटी यूज ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेशन, गोल्ड कार्ड्स, ऑनर सोसाइटी, ऑनर पासिस, सीनियर सिटीजन बैंक एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर कोलैबोरेशन, स्कूल के जो आपकी काउंसिल है वो रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करती है, वो पेरेंट्स होना चाहिए और वो क्या क्या काम कर सकते हैं, एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट, कम्युनिकेट द एक्टिविटीज, वर्क कलेक्टिवली, पार्टिसिपेट इन द स्कूल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेट इन एंड इट्स प्रिपेयर्ड फॉर काउंसिल मीटिंग एंड डिस्कशंस। फिर कोलैबोरेशन विद लोकल बॉडीज हमने स्टडी किया। देन पेरेंट टीचर मीटिंग डिटेल में कि पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए और फेस टू फेस मीटिंग होती है, रिटर्न होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, और आपको पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करके इस्टेब्लिश करना है गुड रिलेशन और खुद को बेनिफिट देना है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और स्कूल को। फिर मैकेनिज्म टू प्रमोट कम्युनिकेशन, जिसमें एवेन्यूज ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, देन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर डिफरेंस ऑन अ पेरेंटल लेवल, इकोनॉमिक एंड टाइम कंस्ट्रेंट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट में हमने कैसे कम कर सकते हैं लॉजिस्टिक बैरियर्स को स्टडी किया। स्पीक स्लोली एंड क्लियर, आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन, अवॉइड इडियम्स, अवॉइड स्लैंग लैंग्वेज, बी स्पेसिफिक एंड पेशेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।